from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is essence. We are discussing chapter number 6, our natural resources, forest and wildlife, and we are conducting today session number 3 for this chapter. Okay, so in our previous chapters, that is session number 1 and 2, इस चैप्टर के प्रीवियस सेशंस जो थे उसमें हमने ऑलरेडी क्या कवर किया है. हियर आई हैव रिटन फ्यू पॉइंट्स. लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग द पॉइंट्स व्हिच वी हैव ऑलरेडी लर्न. फर्स्टली आई इंट्रोड्यूस टू यू टू दिस चैप्टर. आई टोल्ड यू दैट देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच आर नेचुरली फाउंड एंड व्हिच आर नॉट मेड बाय मैन. दीज थिंग्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. जो चीज हम नहीं बनाते, ऑलरेडी भगवान ने बनाई हुई है, उन चीजों को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. करेक्ट. सो उन चीजों में कौन कौन सी चीजें आती है? सनलाइट, वाटर, एयर, करेक्ट, मिनरल्स. ये सारी चीजें जो हैं वो ऑलरेडी भगवान ने बनाई हुई है. दे आर नेचुरल रिसोर्सेज. ओके. सो नाउ देन वी फिनिश्ड दिस टॉपिक. Next type of natural resources I explained to you. There are two types. Exhaustible means non-renewable. Exhaustible which gets exhausted, खत्म हो जाती है, renew नहीं हो पाती, इसीलिए non-renewable भी कहा जाता है. And other one inexhaustible means which will not get exhausted, जो खत्म नहीं होती है. That is called renewable. उसे renewable कहा जाता है क्योंकि वो renew हो जाती है. Exhaustible में हम पेट्रोलियम का एग्जाम्पल ले सकते हैं. कोल, पेट्रोलियम, because all these things, if you use them continuously, what will happen? One day or the other day, it will get exhausted and non-renewable because later you cannot make it. Nature has to renew it. You are not able to renew it. Okay, so these things are called exhaustible. Example for inexhaustible can we take sunlight, water, air, because they are natural, plus they are inexhaustible. खत्म नहीं होते. आज सनलाइट आप जितना भी चाहे यूज कर लो, कल फिर से सन आएगा. The sun will raise again tomorrow and again you will get sunlight. So these things are inexhaustible. Rain, once the rain is over in the monsoon, is it that next year it will not rain? No, every year it keeps raining. हर साल बारिश तो आती है. So again it is also inexhaustible or renewable. Next, we learn the benefits of forest. Forest से हमें क्या फायदा होता है ये हमने सीख लिया था. क्या काम आता है फॉरेस्ट? फर्स्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इट गिव्स अस ऑक्सीजन. इन फॉरेस्ट देयर आर मेनी ट्रीज, प्लांट्स, एंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे गिव आउट ऑक्सीजन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू ब्रीथ. करेक्ट. सो दीज गिव अस ऑक्सीजन टू ब्रीथ. देन वी डिस्कस दैट द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स hold the soil fertile firmly. Soil को एकदम firmly पकड़ के रखता है. Because of which soil erosion is not occurred. Soil erosion नहीं होता. Soil will not get washed away when it is heavy winds or the water flows during the flood. This soil will not get washed away because the roots of the plants and trees are holding it firmly. Then forest improve the quality of the soil. The trees and the plants that are in the forest, the rotten leaves or fruits that fall on the ground, the nutrients in these fruits and leaves get mixed with the soil and hence make the soil fertile. So quality of the soil is improved. उस soil की quality improve हो जाती है. Then it also keeps the surrounding area cool. आजू बाजू के एरिया को कूल रखने में फॉरेस्ट मदद करता है, ट्री मदद करता है. Without forest, the land would become dry
and it will not bring rain. लैंड ड्राई हो जाएगी और डेजर्ट जैसी, क्योंकि बारिश नहीं होगी तो डेजर्ट जैसी सूखी हो जाएगी जमीन. देन इट ऑल्सो गिव्स यू, फॉरेस्ट ऑल्सो गिव्स यू फूड एंड फ्रूट. ये सारे के सारे प्लांट्स में जो ग्रो होते हैं वो भी हमें फॉरेस्ट में से मिलते हैं. दे गिव अस टिम्बर मीन्स वुड विच इज यूज टू मेक फर्नीचर और योर बिल्डिंग्स एक्सेट्रा, उसे टिम्बर कहते हैं. सो फॉरेस्ट गिव अस टिम्बर. दिस wood is also used for making paper, medicine, etc. Some plants are having medicinal value. कुछ plants जो है, कुछ trees जो है, कुछ herbs जो है, उनमें से medicines भी बनती है. Then people also use wood as fuel for cooking. Cooking के लिए fuel किसे कहते हैं? Anything which burns and produces energy is called fuel. कोई भी चीज जिसको बर्न करके उसमें से एनर्जी निकलती है तो उसे हम फ्यूल कहेंगे. तो इस फॉरेस्ट में से जो वुड मिलता है उस वुड को जला के भी एनर्जी होती है, उस एनर्जी से हम फूड को कुक करते हैं. करेक्ट? तो इट गिव्स अस फ्यूल फॉर कुकिंग फूड. देन फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स. बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है. सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट. देन वी हैव ऑल्सो डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट के बारे में मैंने आपको बताया था. इन विच आई टोल्ड यू देयर आर एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट, थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट, mountain forest and tidal forest. 5 types of forest. इन 5 forest में से 4 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए हैं. एवरग्रीन, डेसिडियस, थॉर्नी एंड स्क्रब, माउंटेन. ये 4 हमने डिस्कस कर लिए. तो इन 4 में हमने क्या सीखा? फर्स्ट लेट अस सी एवरग्रीन फॉरेस्ट. एवरग्रीन फॉरेस्ट एज आई टोल्ड यू, जो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहता है उसे एवरग्रीन कहते हैं. हियर द ट्रीज, ऑल द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स एट वंस. व्हेन वन ग्रुप ऑफ ट्री शेड देयर लीव्स, द अदर ग्रुप ऑफ ट्री विल ग्रो न्यू लीव्स. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, दिस फॉरेस्ट विल नेवर लुक बैरन. सूखा ही नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ग्रुप बाय ग्रुप ट्रीज अपने लीव्स शेड करते हैं. सारे के सारे एक साथ ट्रीज लीव्स को शेड नहीं करते हैं. देन आई टॉक्ड अबाउट डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट. डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट. हियर डेसिडियस और मॉनसून फॉरेस्ट जो है वो नॉर्मली जो रेनी सीजन है उस टाइम में बहुत सारे प्लांट्स यहाँ ग्रो करते हैं. एज आई टोल्ड यू, टीक, साल, महुआ, सेम्यूल एंड सैंडलवुड, ये सारे के सारे ट्रीज यहाँ ग्रो करते हैं. देन इट इज देयर इन, वेयर आर दे फाउंड? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, तमिलनाडु. सैंडलवुड कहाँ पर मिलता है? सैंडलवुड के बारे में मैंने बताया था. चंदन की लकड़ी विच इज वेरी गुड, वेरी कॉस्टली, बहुत कॉस्टली होता है सैंडलवुड. ये कर्नाटक में है. कहाँ है? कर्नाटका. तो सैंडलवुड इज फाउंड इन कर्नाटका. ओके. देन वी डिस्कस रिगार्डिंग द थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट. थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट आर जनरली फाउंड इन desert areas or the areas where there is very little or scanty rainfall, dry areas. इन जगहों पर थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट पाए जाते हैं. थॉर्नी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ उगते हैं उनमें थॉर्न्स ज्यादा है, कांटे ज्यादा है. करेक्ट? सो इस वजह से इसे थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट कहा जाता है. Then I have also taught you about mountain और coniferous forest. Mountain forest या coniferous forest के बारे में भी हमने
डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। माउंटेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द हिमालयस एंड द माउंटेन रीजन्स ऑफ नीलगिरीज। तो यहाँ पर ये माउंटेन एंड कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इस फॉरेस्ट की स्पेशलिटी क्या है? ट्रीज जो है वो कोन शेप के होते हैं। कोन शेप के क्यों? क्योंकि ये माउंटेन एरिया में है, तो कोन शेप के होने की वजह से आई एक्सप्लेन टू यू कि जो भी उसके ऊपर स्नोफॉल होगा वो स्लाइड होके नीचे गिर जाएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द स्लोप। एंड द लीव्स आर आई टोल्ड यू लाइक अ नीडल शेप के लीव्स हैं। नीडल शेप के लीव्स होने की वजह से क्या होगा कि अगर ब्रॉड लीव्स होंगे तो उसके ऊपर स्नो गिरेगा तो वो वहां पर जम जाएगा एंड ड्यू टू एक्सट्रीम कोल्ड द प्लांट माइट डाई। बट since the leaves are needle shaped, the snow or the ice will not get space to settle down. वो अपने आप ऑटोमेटिकली स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। So leaves are needle shaped, trees are cone shaped. तो coniferous forest या mountain forest. Now today we will discuss regarding this last, that is tidal or the mangroves. टाइडल फॉरेस्ट और उसे मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। सो शैल वी स्टार्ट? ओके। टाइडल फॉरेस्ट आर फाउंड इन द डेल्टास ऑफ मेजर रिवर्स। डेल्टास मतलब कोई भी रिवर फॉर्म होके उसमें से दो पार्ट निकलते हैं बिफोर इट जॉइंस टू द सी और ओशन। रिवर फ्लो होते होते रिवर जो है वो फ्लो होने के बाद आपने देखा होगा कहीं कहीं क्या होता है, उसमें से दो अलग पार्ट हो जाता है इस तरह से। यहां से फ्लो होकर आती है, फिर यहाँ सी है तो इस सी में मिक्स होने से पहले यहाँ ये दो पार्ट हो जाते हैं, इस तरफ एक जाता है, इस तरफ एक जाता है, करेक्ट? तो यहाँ ये डेल्टा फॉर्म हो जाता है। क्या होता है? डेल्टा। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है या जिसको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं ऑफ मेजर रिवर्स। मेजर रिवर्स मींस बड़ी बड़ी जो नदियां होती है उसके जो डेल्टा रीजन होते हैं यहाँ पर ये टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मैंग्रोव्स। इन टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव्स भी कहा जाता है। These forests are dense and the trees have hard wood. Dense मतलब बहुत घने होते हैं और trees में जो wood है वो एकदम strong, एकदम hard wood होते हैं। Dense का मतलब है जहां पर where there are lots of trees, these forests are called dense forest. बहुत सारे पेड़ हो तो उसे dense forest कहा जाता है। घने जंगल एकदम, करेक्ट? They are sometimes scary also, डर भी लगता है। तो dense forest है and wood कैसा है यहाँ के trees का? Wood is very hard. These forests are dense and the trees have hard wood. The Sundari tree is a well-known tree that grows in Sundarbans. Sundarbans है वो एक फॉरेस्ट का नाम है, इंडिया में ही है। तो इस सुंदरबन का जो फॉरेस्ट है यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्री कौन सा है? सुंदरी ट्री। कौन सा ट्री है? सुंदरी ट्री। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में पाया जाता है। सो मैंग्रोव फॉरेस्ट का एक और नाम क्या है? टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट का एक और नाम क्या है? मैंग्रोव्स। मैंग्रोव ट्रीज की स्पेशलिटी क्या है? These forests are dense, then the wood of the trees here is very hard. Where is it found? Mangrove forest या tidal forest कहाँ है? Yes, delta region of major rivers, and in India it is in parts of West Bengal and Bangladesh में भी है, correct? Then one more thing I told you. The most important tree here it is Sundari tree. And where is Sundari tree found? It is found in the Sundarbans.
सुंदरबंस जो एरिया है, फॉरेस्ट है, वहां पर सुंदरी ट्रीज पाए जाते हैं। वन मोर इंफॉर्मेशन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। मैंग्रोव फॉरेस्ट के ट्रीज जो होते हैं ना किड्स, उसकी एक स्पेशलिटी है। सी आई एम शेयरिंग अ पिक्चर ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट। देखिए पिक्चर। अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ट्रीज के ऊपर जो ब्रांचेस है ना, वो एक्चुअली क्या है कि कभी कभी रूट्स जो है वो ग्राउंड एरिया से अप भी आ जाते हैं। रूट्स नॉर्मली ग्राउंड के अंदर होते हैं, राइट, ग्राउंड के अंदर। बट ये जो मैंग्रोव होते हैं ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट, यहाँ ट्रीज जो है वो नॉर्मली पानी के अंदर सबमर्ज ही होते हैं थ्रू आउट द ईयर। पानी से भरा एरिया ही होता है, नीचे जमीन नहीं होती। तो क्या होगा, उन ट्रीज को पानी के अलावा सनलाइट भी चाहिए, करेक्ट, एयर भी चाहिए। तो ये एयर तो नहीं आएगी पानी के अंदर, तो उस रूट तक एयर पहुंचेगा कैसे? तो उस एयर को ढूंढते ढूंढते यहाँ मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो ट्रीज है ना, उसमें कभी कभी रूट्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर तक आ जाते हैं, ग्राउंड के ऊपर तक। एंड यहाँ आप देख सकते हो कि कुछ ट्रीज ऐसे भी होते हैं कि उसकी जो ब्रांचेस होती है या डाली होती है वो नीचे तक आ जाती है, उसकी जो बेल होती है वो नीचे तक आ जाती है। और जब वो ग्राउंड को टच कर जाती है ना, तब ग्राउंड के अंदर पियर्स होके वहां से एक नया पेड़ भी उग जाएगा। तो एक ही पेड़ में से बहुत सारे अलग अलग पेड़ भी उग जाते हैं, करेक्ट। क्यों? क्योंकि उसकी जो ब्रांच निकलकर नीचे तक आती है ना, डाली, उसकी बेल भी बोलते हैं। आपने देखा होगा कि आप मंदिर में कहीं जाते हो तो कभी कभी ऐसे लंबी लंबी डाली वाले पेड़ देखे होंगे। तो व्हाट हैपेंस कि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट में ऐसा होता है कि रूट्स, इनकी स्पेशलिटी क्या है, द रूट्स ऑफ द ट्री दे ग्रो अबाउट द ग्राउंड ऑल्सो। व्हाई दे ग्रो अबाउट द ग्राउंड? ग्राउंड के ऊपर क्यों ग्रो होता है? क्योंकि उन्हें पानी के अंदर एयर नहीं मिलती, एंड सनलाइट, एयर एंड वाटर, दीज थ्री थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर एनी प्लांट टू ग्रो। किसी भी प्लांट को ग्रो होने के लिए इन तीन चीजों की जरूरत है। अब ये पूरा का पूरा रूट अगर पानी के अंदर है तो एयर कहाँ से मिलेगी उसे? तो इसलिए एयर को पाने के लिए वो पानी के ऊपर तक, ग्राउंड से ऊपर पानी के ऊपर तक रूट्स ग्रो होते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये जनरल इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, सो हियर वी हैव फिनिश्ड डिस्कसिंग रिगार्डिंग द टाइडल फॉरेस्ट आल्सो और द मैंग्रोव्स। नाउ वी फिनिश्ड डिस्कसिंग रिगार्डिंग एवरग्रीन फॉरेस्ट, deciduous or monsoon forest, thorny and scrub forest, mountain और coniferous forest and mangroves। इन सारे के सारे फॉरेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। नाउ लेट अस स्टार्ट द पॉइंट दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ किड्स, कंजर्वेशन का मतलब क्या है? Conservation means, what do you think? What is conservation? Conservation क्या है? Conservation means to protect. Protect करना है forest को। क्यों protect करना है? That we will discuss. Our forest cover is slowly, gently reduced as trees are being cut down in large number to fulfill our needs. हमारे यहाँ फॉरेस्ट धीरे धीरे कट करके क्लियर करते जा रहे हैं, उस लैंड को क्लियर कर रहे हैं। क्यों क्लियर कर रहे हैं? फॉरेस्ट को क्यों कट कर रहे हैं? फॉर अवर नीड, हमारी जरूरत के लिए। समटाइम्स वी वांट वुड, सो वी कट डाउन ट्री। समटाइम्स वी वांट एरिया टू कंस्ट्रक्ट न्यू बिल्डिंग्स, सो वी कट डाउन ट्री। समटाइम्स वी वांट एरिया टू कंस्ट्रक्ट अवर हाउस, सो वी कट डाउन द ट्री। So slowly and gradually, what are we doing?
वी आर कटिंग डाउन दीज ट्रीज एंड क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया को धीरे धीरे क्लियर करते जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर नीड। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूरत है। दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। अब इस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन लार्ज नंबर्स। बहुत सारे पेड़ एक साथ क्लियर कट कर जाते हैं, हम उस प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू मेनी प्रॉब्लम्स। इस डिफॉरेस्टेशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इट लीड्स टू सॉइल गेटिंग वॉश्ड अवे, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते थे ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर फॉरेस्ट ही नहीं है तो वो बेनिफिट्स हमें मिलेंगे? टिम्बर मिलेगा फर्नीचर बनाने के लिए? नहीं मिलेगा। फ्रूट्स, फूड ग्रो होंगे? ट्रीज नहीं है तो नहीं होंगे। फ्रेश एयर, ऑक्सीजन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो लोग ऑक्सीजन बनाते, उन्हें आप कट कर दोगे तो वो ऑक्सीजन भी आपको नहीं मिलेगा। तो वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स के लिए रहने के लिए कोई जगह है? अब नहीं है। तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। इट लीड्स टू सॉइल गेटिंग वॉश्ड अवे, फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। इससे क्या होगा? जो सॉइल है उसको रूट्स फर्मली पकड़ के रखते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब वहां पर रूट्स ही नहीं है क्योंकि ट्री ही नहीं है, तो क्या होगा? वो सॉइल लूज हो जाएगी, तो फ्लड आएगा या हेवी विंड ब्लो होगी तो क्या होगा? दैट सॉइल विल गेट वॉश्ड अवे। वो उस विंड के साथ या पानी के साथ बह जाएगी, सॉइल विल गेट वॉश्ड अवे। देन लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं माउंटेन एरिया में। माउंटेन एरिया में लैंडस्लाइड का मतलब क्या है? बहुत बारिश आती है तो वो जो ऊपर का हिस्सा होता है, रोड के ऊपर जो माउंटेन का हिस्सा आपको दिखता है, वहां की वो सॉइल लूज हो जाती है और वो सॉइल नीचे गिर जाती है रोड्स के ऊपर। कभी कभी व्हीकल्स अगर नीचे से पास हो रहे हैं तो उन व्हीकल्स के ऊपर भी गिर जाती है, तो उसे हम लैंडस्लाइड कहेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां पर ट्री नहीं था। ट्री होता है तो वो उसके रूट्स जो है वो इस सॉइल को पकड़ के रखते हैं। अभी अगर वहां पर ट्री नहीं है तो दैट सॉइल हैज नो स्ट्रेंथ एंड द लैंडस्लाइड ऑकर्ड। There is less rainfall and also less oxygen in the air for us to breathe. रेनफॉल भी कम हो जाएगी और ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट्स बनाते हैं। प्लांट्स ही अगर नहीं है तो ऑक्सीजन मिलेगा हमें ब्रीथ करने के लिए? नहीं मिलेगा। तो ये सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं आज के जमाने में। Many animals, birds and people lose their homes when forests are cut down. बहुत सारे animals, birds and people, उनके भी घर जो है वो बर्बाद हो जाते हैं जब हम ये डिफॉरेस्टेशन या फॉरेस्ट को क्लियर करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी डेवलप्ड सिटीज या टाउन्स में नहीं रहते हैं, वो वहीं पर जहां पर ये फॉरेस्ट एरिया या ट्री एरिया है वहां पर वो ट्राइबल पीपल दे लिव देयर, राइट? ये ट्राइबल पीपल वहां पर रहते हैं। तो अगर आप ये कट कर दोगे फॉरेस्ट तो उनको रहने को जगह मिलेगी? ट्रीज के ऊपर जो नेस्ट बनाए हैं बर्ड्स ने, अगर उस ट्री को आप कट कर दोगे, इफ यू कट डाउन दैट ट्री, वेयर विल द बर्ड्स गो देन? यू स्पॉइल्ड देयर नेस्ट, उनका नेस्ट आपने स्पॉइल कर दिया। देन एनिमल्स, उस पूरे एरिया को अगर आप क्लियर कर दोगे तो एनिमल्स तो फॉरेस्ट में ही रहते हैं, तो अब वो फॉरेस्ट क्लियर हो गया तो वो एनिमल्स बेचारे कहाँ जाएंगे? तो यू आर स्पॉइलिंग दैट। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। और इन सारे प्रॉब्लम्स की वजह से, क्योंकि एक डिफॉरेस्टेशन की वजह से अगर इतने सारे प्रॉब्लम्स होते हैं तो आपको ये नहीं करना है। यू शुड नॉट कट डाउन ट्रीज। You should make more effort to conserve forest by planting more trees. तो conserve forest मतलब फॉरेस्ट को बचाने के लिए आपको एफर्ट्स डालने हैं। फॉरेस्ट को बचाने के लिए एफर्ट्स डालने। कंजर्व मीन्स बचाना, to use little of something as possible so that
इट्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जितना हो सके उतना उसमें से कम यूज करो ताकि बहुत ज्यादा टाइम के लिए वो बच सके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अगर छोटी सी वाटर बॉटल है और आपको अगर प्यास लगी है, अगर एक साथ सारा पानी पी जाओगे तो बाद में क्या होगा? बाद में पानी बचेगा नहीं। तो आप क्या करोगे? थोड़ा थोड़ा पानी अगर पीते रहोगे तो वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए चलेगा। इसीलिए फॉरेस्ट को कंजर्व करके, प्रिजर्व करके, बचा कर रखो। बहुत सारा कट मत करो। आपको टिम्बर के लिए वुड चाहिए तो जितना चाहिए उतने ही कट करो, एक्स्ट्रा कट करने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो, अगर आप टिम्बर के लिए वुड कट कर रहे हो तो उसकी जगह पर एक नया प्लांट ग्रो भी कर दो ताकि थोड़े साल बाद वो एकदम बड़ा ट्री बन जाएगा। तो आपने एक ट्री कट किया, सामने एक दो ट्री ग्रो कर दो तो हो जाएगा ना बैलेंस। द इंडियन गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मेनी प्रोग्राम्स टू प्लांट ट्रीज। इंडिया में गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए हैं, जिसमें प्लांटिंग न्यू ट्रीज का भी एक प्रोग्राम है। सच एज द सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एंड वन महोत्सव। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम है, वन महोत्सव है, ये सब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्टेप्स लिए गए हैं टू कंजर्व फॉरेस्ट, इन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। कौन कौन से हैं? सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एंड वन महोत्सव। Schools also encourage children to plant trees। और schools में टीचर्स जो है वो भी बच्चों को सिखाते हैं कि न्यू प्लांट्स को ग्रो करो। अगर आप कहीं जाते हो, एक प्लांट कट करते हो तो उसकी जगह पर 2-3 और ग्रो कर दो, तो उससे क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा, नेचर में बैलेंस आ जाएगा। अगर आप सिर्फ कट करते रहोगे तो क्या होगा? देयर विल बी इम्बैलेंस, बैलेंस नहीं रहेगा। सो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल दीज पॉइंट्स in this session. In next session, we will start discussing regarding the last part of this chapter, that is the wildlife. तो फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में, ये सारा का सारा हमने इस चैप्टर में कवर कर लिया। Now I am sending a PDF which is fill in the blanks based, so you will find the answers from the textbook by your own self. Or go through the video. You can also find the answers through the video. Hope you like this session.